माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, I welcome you all for the Bar Census season. I sincerely believe that the season will be meaningful and truthful. We are going to take up many important issues and discussion for the household today. Member to take the oath and affirmation. Secretary General, please. Mr. Vinayak Jaiswal, who standing elected from Ujjain Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh, will now take oath or affirmation. Mr. Vinayak Jaiswal. Mr. Vinayak Jaiswal, आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? Okay, sir. Kindly proceed. मैं विधायक लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की एकता और प्रभुता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Mr. Rituraj Malviya, Member of Parliament who stand elected from Thiruvananthapuram Parliamentary Constituency of Kerala, will now take oath or affirmation. Mr. Rituraj Malviya. Mr. Rituraj Malviya, do you want to take oath or affirmation? Affirmation, please. In which language would you like to take affirmation? English, please. Okay, sir. Kindly proceed. I am Rituraj Malviya, having been elected a member of the lower house of Bar Sansad, solemnly affirm that I will bear good faith and allegiance to the Constitution of India and by law as established, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Ms. Vaishnavi Chadar, Member of Parliament who stand elected from Jalgaon Parliamentary Constituency of Maharashtra, will now take oath or affirmation. Ms. Vaishnavi Chadar. Ms. Vaishnavi Chadar, do you want to take oath or affirmation? In which language would you like to take oath? Okay, ma'am. Please proceed. मी मिस वैष्णवी चादर ज्यांची बाल संसदेच्या लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवड झाली आहे, देवाच्या नावाने शपथ घेते की कायद्याने स्थापित केलेल्या भारतीय राज्यघटनेवर माझी खरी श्रद्धा आणि निष्ठा असेल, सार्वभौमत्व कायम राहील आणि देशाची एकात्मता आणि मी जे पद सांभाळणार आहे ते मी निष्ठेने पार पाडेन. Honorable members, with profound grief I refer to the passing away renowned tabla master Ustad Zakir Hussain on 15th December 2024.
Born on 9th March 1951 on Mumbai, Ustad Zakir Hussain transcended a boundary of art and culture, elevating Indian music to global prominence as the iconic ambassador of Indian classical music. He bringing the tradition of Indian culture to the global stage. His extraordinary contributions were widely recognized, including through the award Padma Shri in 1991, Padma Bhushan in 2002, and Padma Vibhushan in 2023. In historical moment in 2024, he became the first Indian artist to bring the 3 Grammy Awards in single night. I request all the members to rise their place, observe a moment of silence as the mark of respect to his enduring memory. Please stand up. Over. Prime Minister to introduce ministers. Sir Speaker, I am pleasure in introduction to you and through you to the House, my colleagues and the new minister, Ms. Babita Nigwal, Minister of Coal and Mines. Ms. Khushi Bir, Minister of Education. Now the question hour begins. Question number 301. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। Miss Alice Sisodia. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में किसानों की मासिक आय कितनी है और अगर आय कम है तो उसे ज़्यादा करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और 2023-24 में किसानों की राज्यवार आय कितनी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के संदर्भ में NSF की एक रिपोर्ट है, उसी को हम प्रमाणित मानते हैं। 2003 में किसानों की आय 2115 रुपये थी, जो 2018 में 10,218 रुपये हो गई। उसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे उत्पादन बढ़ाकर प्राकृतिक आपदा में सहायता करना, लागत कम करना और जैविक कृषि को बढ़ावा देना। धन्यवाद। Any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये सिर्फ जमीनी हकीकत है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कब बढ़ाए जाएंगे, उनका कर्ज कब माफ होगा? और मैंने प्रश्न किया था कि 2023-24 में किसानों की राज्यवार आय कितनी है, उसका भी उत्तर मुझे नहीं मिला। Question number 302. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तटीय पुलिस का प्रशिक्षण किस प्रकार होता है? तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को यह बताना चाहती हूँ कि तटीय सुरक्षा त्रिस्तरीय होती है। मछुआरों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने जागरूकता अभियान भी चलाया है। 20 मीटर से बड़ी मछली पकड़ने वाली नावों पर स्वचालित पहचान प्रणालियाँ भी लगाई गई हैं व जहाज़ों पर कलर कोडिंग भी करवाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 से 2013 के बीच 257 किलो नशीले पदार्थ भी पकड़े गए हैं, जो कि 2013 से 2024 में बढ़कर 12,617 किलो हो गया है। इसी तरह 2003 से 2013 के बीच 7,000 किलो प्रतिबंधित सामान भी पकड़ा गया है। इसी प्रकार जो कि 2013 से 2024 के बीच बढ़कर 4,15,264 किलो हो गया है। इसी बीच 319 अवैध मानव प्रवासी पकड़े गए हैं। Question number 303. माननीय अध्यक्ष महोदय,
सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को घोटालेबाजों द्वारा विभिन्न देशों से नौकरी के इच्छुक युवाओं को फर्जी नौकरी की पेशकश और उनके शोषण की जानकारी है? यदि हाँ, तो इस फर्जी नौकरी के पेशकश संबंधी मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ संदिग्ध संस्थाओं द्वारा फर्जी भर्ती के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और ये प्रलोभन भारतीय नागरिकों को विदेश में नौकरी के लिए दिए जा रहे हैं। मंत्रालय को इस तरह के अवैध भर्ती एजेंटों के बारे में तब पता चलता है जब ऐसे पीड़ित प्रवासी अथवा उनके रिश्तेदारों या मित्रों द्वारा शिकायत की जाती है जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा धोखा दिया गया है, क्योंकि ये ऐसे भारतीय नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से विदेश जाते हैं। सरकार विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एजेंसी पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना विदेश में कार्य नहीं कर सकता। विदेश में कार्य के लिए जाने वाले किसी भी भारतीय नागरिक के अगर फंसने की खबर हमें मिलती है तो ये मामला तुरंत पुलिस के पास भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 304। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि साइबर धोखाधड़ी के निवारण हेतु वर्तमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को बताना चाहती हूँ कि भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का विषय है। सरकार ने साइबर अपराध से व्यापक और समन्वित तरीकों से निपटने के कानून प्रवर्तन एजेंसी एक कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। सरकार ने जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराध की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल प्रावधान के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए स्वचालित रूप से संबंधित राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिया जाता है। अब तक 9 लाख से अधिक शिकायतों में 3,431 करोड़ की वित्तीय राशि बचाई गई है और साइबर अपराधों के लिए टोल फ्री नंबर 1930 भी जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 305। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में इसके द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनेक सौर ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन किया है? अध्यक्ष महोदय, 30 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को योजना निविदाओं के अंतर्गत 43.3 गीगावाट की सौर परियोजनाएं चालू की गई है। 30 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार SECI योजना निविदाओं के अंतर्गत 15.6 गीगावाट की परियोजनाएं चालू की गई है। सेकी की अपनी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ सेकी द्वारा हस्ताक्षरित PPA के साथ विभाग के रूप में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिश्वतखोरी के मामलों के कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 306। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत 510 कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है? खाद्य मंत्रालय ने प्रेस के क्षेत्र कार्यालय में देश भर में कुल 609 कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में सक्रिय रूप से भागीदारी की। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन, स्थानीय प्राधिकारी, सेना, पुलिस सहित 40,830 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बारे में सर्वसम्मति काफी सकारात्मक व उत्साहजनक रही। क्वेश्चन नंबर 307। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष
लगभग 87 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया है। DAI-NRLM के तहत एक मुख्य योजना स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं अथवा उनके परिवार के सदस्यों को छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। SVP ने अक्टूबर 2024 तक 3.13 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकिंग सहायता सखी के रूप में भी तैनात किया गया है और स्वयं सहायता समूह नवंबर 2024 तक 9,72,000 करोड़ रुपए बैंक लोन प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 308। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का ब्यौरा क्या है? यांत्रिक और रिले आधारित इंटरलॉकिंग की तुलना में इसके क्या लाभ हैं? भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के प्रावधान के लिए मौजूद दिशा निर्देश क्या है? पिछले 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा में प्रदान किए गए स्टेशन का ब्यौरा क्या है? इसके लिए बजट में कितना आवंटन किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग प्रणाली है जिसमें गाड़ी के परिचालन के लिए किसी भी स्टेशन को बंद करने से पहले गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। मैकेनिकल व रिले आधारित इंटरलॉकिंग की तुलना में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप तेजी से परिचालन होता है, कम जगह और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह अधिक विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को स्वचालित कार्य सुरक्षा और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के जैसे अन्य प्रणालियों के साथ इंटरफेस करना आसान है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार 500 मार्गों से अधिक वाले स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मुहैया कराना अपेक्षित है। 2004 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग युक्त स्टेशनों की संख्या 837 थी, जो 2014 से 2024 तक बढ़कर 2,964 तक हो गई है। सिग्नल दूरसंचार कार्य के लिए 2024-25 के बजट में 4,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। क्वेश्चन नंबर 309। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देश के विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या 2024 में कोई नई योजना शुरू की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम कैसे चलाया जाता है? माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 13.4.23 में बताया गया है कि डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान को सभी छात्रों द्वारा कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं को सीखा जाना चाहिए, जिन्हें विभिन्न डिजिटल पहल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। 17 मई 2020 को पीएमडी विद्या पहल को एनसीईआरटी के माध्यम से लागू किया गया। आइटम नंबर 1, मिस दीक्षा वाघ। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज की कार्यसूची से मेरे नाम के समूह को लेकर विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 2, योगेश कश्यप। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची पद संख्या 2 पर मेरे नाम के समूह उल्लेखित कागजात को आपकी अनुमति से सदन पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding association of one member from Rajya Sabha with the Committee of Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में आर्मेनिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य विराजमान है। मैं अपनी ओर से और सांसद के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि आर्मेनिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री एलन जी और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन 16 दिसंबर 2024 को हुआ। भारत शिष्टमंडल के
माध्यम से हम आर्मेनिया के सांसद, वहाँ की सरकार व वहाँ के मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। Now let us take up calling attention motion Kumari Shraddha Shinde to call the attention to the Ministry of Social Justice and Empowerment to the situation rising out of the report increase in drugs addiction in school-going children in country. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में मादक द्रव्य पदार्थों की लत की खबरों के कारण पैदा हुई स्थिति पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है नशीली पदार्थों के रोकथाम के लिए, जबकि नशीली दवाओं में कमी लाने संबंधी विभिन्न कार्य गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान से संबंधित राष्ट्रीय सर्वे 2018 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा करवाया गया। Now legislative business will be taken. Honorable Minister of Education to move the motion of leave of the House to introduce the bill, the right of children to free and compulsory education bill 2024. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा संबंधित संशोधित बिल 2023 को सदन में पुनः स्थापित करना चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक को पूर्ण स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ करें, जो सदस्य इसके विरुद्ध में हैं वे ना करें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पूर्ण स्थापित करें। माननीय रेलवे मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 इस महान सदन में विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली पैसेंजर रेलवे लाइन 1853 में चली और आगे 1890 में रेलवे को एक्ट बना। शुरुआत में रेलवे पीडब्ल्यूडी का भाग था, लेकिन बाद में 1905 में रेलवे को पीडब्ल्यूडी से अलग कर दिया गया और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। 1990 को रेलवे पुराना कानून बदल के नया कानून बना, लेकिन 1905 के रेलवे बोर्ड कानून में उसमें एकीकृत नहीं किया गया। आज आपके समक्ष 1905 के रेलवे बोर्ड कानून को 1990 के रेलवे कानून में एकीकृत करने का बिल प्रस्तुत है। अन्य अध्यक्ष जी, इस बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बहुत विकास किया गया है। जहाँ पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बजट 29,000 करोड़ रुपए था, वे बढ़कर 2,52,000 करोड़ रुपए हो गया है। 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जबकि पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। 2014 से पहले केवल 1,500 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे के ट्रैक बनते थे, जो अब 5,300 किलोमीटर हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन से निवेदन करता हूं कि इस बिल पर चर्चा करके इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मिस्टर सोमेश निगम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जो अवंतीपुरा सोपोर रेलवे लाइन बन रही है, वह किसके कहने पर बनी जा रही है? क्या उसके लिए जनता की सहमति दी गई थी? आप किसके कहने पर रेलवे लाइन बना रहे हैं? क्या इसके लिए वहाँ के लोगों ने मांग रखी थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रेलवे लाइन के बनने से हजारों एकड़ में फैले हुए सेव के बाग नष्ट हो जाएंगे। सेव कश्मीर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। लगभग 35 लाख लोग सेव की खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से माननीय रेलवे मंत्री से यह आग्रह करता हूँ कि रेलवे लाइन बिछाने के पहले वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की जाए। मिस्टर आदित्य पाटीदार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे संवाद में बोलने का मौका मिला। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बिल के पास होने से रेलवे का केंद्रीकरण बढ़ेगा, रेलवे बोर्ड की निरंकुशता बढ़ेगी, संविधान की संप्रभुता की भावना कमजोर होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के 2024 के विजन के अनुसार अब तक तो रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है। मिस अदिति सेडके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस बजट से उत्तर पूर्वी राज्यों में रेलवे बजट का तोहफा दिया
पाटीदार। माननीय मंत्री जी, आपने डीएम और डीआरएम को राजा बना के रखा। वे अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं। वे रेलवे के किसी प्रोजेक्ट के उद्घाटन में स्थानीय सांसद को पूछते भी नहीं है। यहाँ तक कि जो आरसीटीसी द्वारा जो खान पान की व्यवस्था की जाती है उसमें भी असमानता दिखती है। रेलवे बोर्ड के ऑफिस में दलाल घूमते रहते हैं। आम आदमी को ट्रेनों में जगह भी नहीं मिलती। रेलवे ने ट्रेनों में से जनरल डब्बे लगभग हटाई दिए हैं। पिछले 11 साल से रेलवे की कोई भर्ती भी नहीं आई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री से जानना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अनुसूचित जाति की कितनी संख्या है? विधेयक पर विचार के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे ना करें। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे ना करें। मेरे विचार से प्रस्ताव हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है। विधेयक पर प्रस्ताव पारित हुआ। अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ करें। जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना करें। मेरे विचार से प्रस्ताव हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है। मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे ना करें। जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना करें। मेरी समझ में फैसला हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा कल सुबह 11 बजे के लिए स्थगित किया जाता है। बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि विद्यार्थियों के द्वारा किस प्रकार से जो है संसद का सत्र चलाया गया, पक्ष और विपक्ष की बहस देखी। विपक्ष के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए और समस्याओं को रखा गया। पक्ष के द्वारा उन प्रश्नों का जवाब दिया गया और जो प्रश्न पूछे उनका भी जवाब दिया गया। समस्या के निवारण के लिए भी जो है अपने विचार रखे। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो आए वोट ऑफ थैंक के लिए यहाँ पर आए।